Hello student, today's topic is Introduction and Types of Data Structure. It is a part of first unit Introduction to Data Structure. The objective of current session is define data structure, list the types of various data structure and operation performed on data structure. Data. Data are raw fact and does not possess any meaning. It means डेटा क्या है कि एक फैक्ट चीज है जिसका कोई मीनिंग नहीं है लाइक एग्जांपल 67 एंड 78.9 नंबर बट ये नंबर क्या कह रहा है वो पता नहीं है नाउ इंफॉर्मेशन व्हेन मीनिंग इज असाइंड टू डेटा इट बिकम्स इंफॉर्मेशन इसका मतलब अगर कोई डेटा है जिसको अगर कोई मीनिंग दिया जा रहा है तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं or in other words information is a processed data means information एक प्रोसेस किया हुआ डेटा है like an example is total of marks or a percentage you get in standard time. Storage representation of data. So data is stored in RAM or ROM. RAM means random access memory or ROM means read-only memory. Cell is a memory location which is used to store element of data items. इसका मतलब सेल का यूज किसके लिए होता है अगर कोई डेटा आपको स्टोर करना है उसके लिए होता है और उसको हम मेमोरी लोकेशन बोलते हैं जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट को क्लास में कोई लेक्चर अटेंड करना है तो वो क्लास में जाके क्या करेगा वो पर्टिकुलर कोई बेंच पे जाके बैठेगा अब स्टूडेंट के केस में वो जो बेंच है उसको हम सेल कहेंगे और जो क्लासरूम है उसको हम पूरा मेमोरी लोकेशन बोलेंगे सेल स्टोर 8 बिट वैल्यूज इट मींस एक सेल में 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है और 1 बाइट मींस 8 बिट लाइक यू कैन सी दैट a cell is storage representation like 0 to 255. Now what is 0 to 255? 0 means that is the index number 0. Now that is cell number 1. That is cell number 2, that is cell number 3, and that is cell number 256. Now that one cell will hold a value of 8 bit, means 1 byte. Now basic concept of data structure. Data structure is a way to storing and organizing. Data structure is a way to storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एक मेथड है जिसकी वजह से हम डेटा को ऐसे स्टोर करते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हम उसका एफिशिएंटली उसका यूज कर सकें. A logical relation among the data items is also called as data structure. So the logical or mathematical model of data organization is called as data structure. इसका मतलब है लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल जिसकी वजह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर का हम ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में और हर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम उसका यूज करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर का गोल क्या है? सो डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू गेट डेटा इजीली व्हेन वी वांट. जब हमें कोई डेटा चाहिए तब हम उसको इजीली यूज कर सके इसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. Data structure means data plus algorithm. Data structure are used in various areas like compiler design, operating system, graphics, database management system, artificial intelligence, simulation, etc. Now, types of data structure. So here a data structure is divided into two parts. First part is primitive data structure and second part is non-primitive data structure. Now, what is primitive and non-primitive data structure?
So a data structure which is directly operated by machine level instruction is called as primitive data structure. And a non-primitive data structure, a data structure which is not operated by machine level instruction is called as non-primitive data structure. Now, primitive data structure is further divided into 5 types: integer, float, character, logical, and pointer. While a non-primitive data structure that is further divided into 2 parts. First part is called as linear data structure and second is called as non-linear data structure. So as we can say that as per name, linear data structure, linear means line. So a data structure which hold a data in a linear manner or sequential manner, that is called as linear data structure. And non-linear data structure means a data structure which does not hold a data in linear manner. That is called as non-linear data structure. Now, example of linear data structure, that is array, stack, queue, and linked list. While non-linear data structure, tree and graph. So these are the types of data structure. Now, primitive data structure. So the data structure that are directly processed by machine using its instruction are known as primitive data structure. इसका मतलब है ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट हो रहा है उसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे. Types of primitive data structure. So first primitive data structure is integer. So integer, as we earlier know that integer will hold a numerical value without a decimal point. It can be a positive value or a negative value. So example is number of students in our class. Real is another example of primitive data structure. So here real means float and double data type of C or C++. So the number having fractional part is called as real number. इसका मतलब है अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू दी गई है तो हम उसको रियल नंबर बोलेंगे. So example is 123.45. So that is called real number. Real numbers are also stored in scientific format. Another example of primitive data structure, that is character. It means a data structure which is mainly used to store alphabets or a string. So a data structure that is used to store non-numerical information. It can be a letters from capital A to Z, small a to Z, digits and special symbols. A character is represented in memory as a sequence of bits. Two most commonly known character sets supported by computers are ASCII and EBCDIC. Another example of primitive data structure is logical. So logical means either true or false. So a logical data item is a primitive data structure that can assume the value of either true or false. इसका मतलब है लॉजिकल डेटा टाइप अगर कोई है तो उसमें आइदर ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी. Pointer. So pointer is a variable which store the address of another variable. It provides faster insertion and deletion of element. इसका मतलब है पॉइंटर की हेल्प से हम इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन एकदम फास्ट कर सकते हैं. Now, non-primitive data structure. The data structure that are not directly processed by machine using its instruction are known as non-primitive data structure. इसका मतलब है ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन से प्रोसेस नहीं हो रहा है उसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे.
non-primitive data structure are classified into two categories or two types. First is linear data structure and second is non-linear data structure. Now, linear data structure. So, logical relation among the data item is linear. इसका मतलब है ये वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जितने भी हम एलिमेंट स्टोर करेंगे सभी लीनियर फैशन में स्टोर होंगे, यानी सीक्वेंशियल मैनर में ही स्टोर होंगे. सो डेटा इज स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन मेमोरी लोकेशन. एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर array, stack, queue and linked list. Like in a various function like a queue or a line form at a ticket window of any theater. उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई थिएटर में टिकट परचेस करने के लिए जाते हैं तो सभी पर्सन क्या करते हैं, एक लाइन में ही खड़े रहते हैं. सो हम उसको लीनियर फैशन बोल सकते हैं. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यू. और ए बंच ऑफ डीज अवेलेबल एट अ होटल. सो उसमें क्या होता है, बंच ऑफ डीज जो भी होते हैं उसमें भी वो सीक्वेंस मेंटेन होता है. Array. So array is a set of data items using same data type. Set of fixed number of items. Array is an ordered set which consists of a fixed number of objects. Now array को हम कैसे कह सकते हैं? So array क्या है? Array एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसमें सभी डेटा एक ही एलिमेंट के होते हैं. उसके साथ साथ एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फिक्स होते हैं और उसके साथ साथ जितने भी एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं सभी ऑर्डर सेट में ही स्टोर होंगे. लाइक पहला जो एलिमेंट स्टोर होगा वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा. देन नेक्स्ट एट नंबर 2, देन नेक्स्ट एट नंबर 3 एंड सो ऑन. Insert and delete operation are time consuming as well as searching and sorting operation are fast in an array. इसका मतलब है अगर हमें array में कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है या कोई एलिमेंट को डिलीट करना है सो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा. लेकिन अगर हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है या कोई एलिमेंट को हमें सॉर्ट करना है तो वो ऑपरेशन फास्टर होगा. नाउ स्टैक. So a stack is a linear list in which insertion and deletion operation are performed at only one end of a list. Means stack एक ऐसा linear list है जिसमें insert and delete operation दोनों एक ही जगह पे परफॉर्म होते हैं. लाइक अगर मान लो कि हमने कोई बंच ऑफ बुक बनाया है, यानी सपोज मेरे पास 5 बुक का एक बंच अवेलेबल है. अगर मुझे कोई बुक को पिकअप करना है तो मैं क्या करूंगा, टॉप से ही मैं उस बुक को पिकअप करूंगा. और अगर मुझे कोई बुक को ऐड करना है तो मैं उसको टॉप पे ही मैं उसको ऐड करूंगा. यानी इन अ स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बोथ आर परफॉर्म एट द सेम एंड. जैसे हम कई बार हम कोई मैरिज फंक्शन में जाते हैं तब हम डिनर के लिए अगर हम कोई प्लेट को हम पिकअप करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बंच ऑफ प्लेट्स रखे हुए होते हैं. अब अगर कोई भी गेस्ट आता है तो वो कहाँ से वो डिश पिकअप करेगा, वो टॉप से ही वो उसको पिकअप करेगा. उसके बाद अगर नेक्स्ट गेस्ट आता है तो वो उसके बाद उसको जो टॉप मिलता है वहां से ही वो डिश को पिकअप करेगा. तो इस तरीके से स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टॉप पे ही परफॉर्म होते हैं. इट इज a LIFO data structure. Now what is LIFO? LIFO means last in first out. इसका मतलब है स्टैक में जो एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ होगा वही एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा. यानी स्टैक में जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट फर्स्ट डिलीट होगा. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं. अभी क्या होगा, जो 50 नंबर है वो उसको हम टॉप बोलेंगे
अगर कोई एलिमेंट को हमें ऐड करना है तो वो एलिमेंट यहाँ पर ही ऐड होगा, सो वो 50 के अबोव पे ही ऐड होगा, यानी ये लोकेशन पे उसको हम ऐड करेंगे। और अगर हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो हम 50 को ही डिलीट कर सकते हैं। सो पहला क्या कौन डिलीट होगा, 50 डिलीट होगा। 50 डिलीट करेंगे, उसके बाद 40 नंबर है जो वो हमारा टॉप बनेगा, यानी उसके बाद हम 40 को हम डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद हम 30 को डिलीट कर सकते हैं, उसके बाद हम 20 को डिलीट कर सकते हैं। यानी वन बाय वन हम जो टॉप पे एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, एज वेल एज वन बाय वन हम जो टॉप पे एलिमेंट है उसके ऊपर ही हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ क्यू। So a queue is a linear list in which insertion operation performed at one end called as rear and deletion operation is performed at another end called as front. So हम simple words में हम ऐसे बोल सकते हैं, queue is a data structure in which insertion operation is performed at one end and deletion operation is performed at another end. It is a FIFO data structure. Now FIFO का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है क्यू के इन अ क्यू एलिमेंट इज डिलीटेड फर्स्ट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट, यानी जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट पहले डिलीट होगा। लाइक ए क्यू इज फॉर्म एट अ टिकट विंडो ऑफ थिएटर। अब उसमें क्या होगा, जो पर्सन पहले आया है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, और अगर उसके बाद कोई उसके बाद अगर 4 पर्सन और लाइन में ऐड हुए हैं तो पहले क्या होगा, जो पहला आया उसको टिकट मिलेगा तो वो वहां से निकल जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आया था उसको टिकट मिलेगा तो वो निकल जाएगा, और सेम टाइम पर अगर 4 पर्सन और ऐड हो गए तो वो कहां पर ऐड होंगे, वो जो भी क्यू थी पर्सन की उसके पीछे की साइड पे ऐड हो गए। सो that is an example of queue. Like at here, that is our first element, then that is second element, then third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh, then eighth. अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ये एलिमेंट आया है, सो सबसे पहले वही डिलीट होगा, और जैसे जैसे हमने एलिमेंट ऐड किए वैसे वैसे वो क्यू बढ़ती जाएगी। अब ये हमारा लास्ट एलिमेंट है तो इसके बाद ही नया एलिमेंट ऐड होगा, यानी क्यू में जो जिस एंड से एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं उसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे, और जो एंड पे एलिमेंट ऐड हो रहे हैं उसको हम रियर एंड बोलेंगे। नाउ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज नथिंग बट इट इज ए चेन। सो चेन में क्या हो रहा है, पहला जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट के साथ अटैच होता है। सो a linked list is a collection of nodes. Each node have two fields. First field is information, means data, and second field is address, which contains the address of next node. इसका मतलब है लिंक लिस्ट में कलेक्शन ऑफ नोड तो अवेलेबल है, लेकिन वो हर एक नोड में क्या करेगा, वो हर एक नोड दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट है यहाँ पर जो नंबर 1 लिखा है वो हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट है, एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो बॉक्स दिया है वो हमारा एड्रेस पार्ट है। अब ये एड्रेस पार्ट क्या होल्ड करेगा, एड्रेस पार्ट विल होल्ड एन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, यानी जो हमारा नेक्स्ट नोड था उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब सेकंड जो नोड है उसमें क्या होगा, पहला जो पार्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा, और जो सेकंड पार्ट है उस वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करेगा। सो यहाँ पर ये जो नोड है उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, और जो हमारा लास्ट नोड है उसमें भी दो पार्ट दिए जाएंगे, लेकिन जो पहला जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, और अब जो सेकंड पार्ट है एड्रेस पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, नल दिया हुआ है, यानी कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर address part hold a null value, it means that is the last node of our linked list. तो इस तरीके से linked list एक chain form करेगा। Now non-linear data structure. So as we already know that non-linear means without a line or without a sequence.
So logical relation among the data item is not linear. इसका मतलब है लॉजिकली जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो सभी लीनियर फैशन में नहीं होंगे. So data is not stored sequentially. Data sequentially stored नहीं होंगे. Example of non-linear data structure are first a tree and second a graph. Like in a general terms, tree is a best example of non-linear data structure. जैसे हम रूटीन लाइफ में हम ट्री को देखते हैं तो उसमें क्या है कि नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है. वो कैसे रहेगा? सो ट्री में सबसे पहले बॉटम पे क्या दिया हुआ है? रूट दिया हुआ है. नाउ दैट रूट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस. यानी जैसे जैसे वो टॉप ऊपर की डायरेक्शन में जाता है वो ब्रांचेस क्रिएट करता है. नाउ एक ब्रांच है वो फर्दर 2 या 3 ब्रांच में कन्वर्ट डिवाइडेड होती है और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होती जाती है. सो उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. सो नाउ ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर. It consists of nodes connected by edge, and a node represents data items. The node represents circles. In a tree data structure, it contains hierarchical relationship. It means root element is divided into further elements. Now that elements again further divided into sub elements. So इस तरीके से वो hierarchical relationship build करेगा. Now that is a diagram of tree data structure. So that is our root element. Now root element is divided into 3 parts. Now again that element is further divided into sub parts. So इस तरीके से tree further division होती जाएगी. Now graph. So graph is almost same like a tree. So the data structure contains relationship between pair of elements. Graphs are of many types. So first type is directed graph, second is undirected graph, third is mixed graph, and fourth is weighted graph. So that is a diagram of an example of graph. So here we can see that Delhi is connected with Bombay as well as Delhi is connected with Calcutta. Now यहाँ पर क्या दिया है? ग्राफ दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि दिल्ली से हम बॉम्बे ही जा सकते हैं या दिल्ली से हम कोलकाता जा सकते हैं. सो यहाँ पर जितनी भी एड्स दी हुई है, लाइक दिस इज कॉल्ड एड्स, इसको भी हम एड्स बोलेंगे, इसको भी हम एड्स बोलेंगे और इसको भी हम एड्स बोलेंगे. यहाँ पर जो 4 एड्स दी हुई है उसमें से किसी ने भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है. सो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ. नाउ डायरेक्टेड ग्राफ, अगर यहां पर ऐसे एरो दिया हुआ है सो हम उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ. सो in a graph, if all the edges contain some direction, then we can see that that is a directed graph. Mixed graph. So mixed graph हम किसको बोलेंगे? जो भी ग्राफ दिया है उसमें से कई एड्स ऐसी है जिसमें कोई डायरेक्शन दिया हुआ है और कई एड्स ऐसी है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया है. यानी इसको हम डायरेक्टेड एड्स बोलेंगे और इसको हम अनडायरेक्टेड एड्स बोलेंगे. सो हम अगर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एड्स का मिक्स दिया हुआ है कोई ग्राफ में, सो हम उसको मिक्स ग्राफ बोलेंगे. नाउ वेटेड ग्राफ. नाउ वेटेड ग्राफ हम क्या बोलेंगे? अगर कोई ग्राफ कोई एड्स दी हुई है जिसमें अगर कोई वेटेज दिया हुआ है सो हम उसको क्या बोलेंगे? वेटेड ग्राफ. यानी वो जो भी एड्स है उसमें कोई वेट दिया हुआ है सो हम उसको वेटेड ग्राफ बोल सकते हैं. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं. So first is traversing. Traversing means accessing each element of a data structure and doing some processing over the data. यानी कोई एरे दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं अगर हमने उस सबको हम वन बाय वन उसको एक्सेस किया और उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हम उसको हम ट्रैवर्सिंग बोल सकते हैं.
Next one is inserting. Inserting means insertion of a new element into the data structure. यानी अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर में या कोई एरे में कोई न्यू एलिमेंट हम उसको ऐड कर रहे हैं तो उसको हम इंसर्टिंग बोल सकते हैं. Now next is deleting. अगर कोई एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में से सो हम उसको हम डिलीशन बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज सर्चिंग. सो searching for a specific element in a data structure is called as searching operation. Now next is sorting. Sorting the data in ascending or descending order in a data structure is called as sorting. यानी अगर डेटा स्ट्रक्चर में कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं तो हम उसको सॉर्टिंग बोल सकते हैं. The next operation is merging. So combination of two data structure or a combination of two array is called as merging operation. So ये सेशन में मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन कवर करवाया, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किए और उसके साथ साथ हमने ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को भी हमने थोड़ा एनालाइज किया. थैंक यू.